So we have the four pillars. One is the legislature, one is the executive, one is the judiciary, one is the media. When you talk about the nation building or the nation foundation, which is the largest and the biggest court of India, High Court of India? Allahabad High Court. That's fantastic. So Kabir Das said that, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होई बहुरी करोगे कब। 6 फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या है? आपकी जो 12 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो क्या है? आज भी कितने लोग अपनी बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि बगल वाले चाचा कहेंगे अपनी बच्ची को बाहर भेजता है। वही होता है समाज। आज भी कितने लोग इसी पीड़ा में बैठे हुए हैं कि अरे यार वो तो घर छोड़ के चला गया दिल्ली, समाज क्या कहेगा? बेटी तुम्हारी मैंने शादी लगा दी। यस पापा, दैट्स ग्रेट न्यूज, फैंटास्टिक। व्हेन यू टॉक अबाउट सेकुलर, तो सेकुलर मींस धर्मनिरपेक्षता, जहां पे कोई भी किसी के फेवर में ना, राइट? हियर यू टॉक अबाउट कि हाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, राइट? लक्ष्मी आई रेड, आर यू खुशी? ओके, व्हेन डू यू फील वेरी वेरी हैप्पी? एक्चुअली द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। यू हैव द लिबर्टी ऑफ फेथ, आपको वर्शिप, पूजा करने का, नमाज पढ़ने का अधिकार है। एक 5 रुपए की चाय लेके पीते हुए अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, वहीं बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट दे के पूरा पैसा अमेरिका मंगा लिया। We all are here. We have taken a risk. Let's just go to Happiness Institute. Whether we will improve or we will learn. We will be transformed. We will have experience. We will just get to know something. We will just come to learn something. We will change something. We will just transform something. It is just the purpose of us to be here in Happiness Institute campus. And that is what the risk you have taken in your life. तो यही है रिस्क। आप यहाँ पर भाग के आए, आप चल कर आए, आप जैसे भी आए, आपने रिस्क लिया और वही आपका रिस्क। तो रिस्क लेना जिंदगी में बहुत जरूरी है, वेदर इट इज ए रिस्क और इश्क। And now one of the most and the biggest point I have seen and observed in my life, that the biggest issue with all of us, that just for example 2 new students came, right? They have no confidence, right? They were just on the stage and they were shivering. They were like, sir, my name is something like that. I'm from Rampur, something like that. It means that they are so much scared of the stage and the people. So it means that they have a shy nature. And shy nature is somewhere very, very good, but somewhere it is very, very dangerous. Because your shy nature always stops you from doing and attempting something. You just want to dance on the floor, your shy nature is stopping you. You want to speak loudly something, your shy nature is pulling you down. You want to crack the interview, your shy nature is stopping you. You want to speak something on the stage, your shy nature is stopping you. That is why shy nature is just like a sweet poison, a barrier, a stoppage, and the foundation. And that is why whenever you feel shy or the shame, just say to your heart, say to your soul that, hey, this is not your goal. Don't be goal. Just say to the shyness, hey, get away from my life. I don't feel any way, at any time, at any moment, shyness. I don't feel shy. It's all right. You say to me to dance, I'm ready to dance, right? I don't feel shy. You say to me to speak on the stage, it's all right. I can speak. I don't feel shy. Just have a very common example. If I say to you that you need to go to the chai wala and you need to say that, भोली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। अगर आपको चाय बेचना हो, राइट, अगर आपको चाय बेचना हो अभी जाके, तो आप अचानक आपके अंदर एक शर्म सी आ जाएगी, लेकिन वो जो ट्रेन की डब्बे में केतली लेके चढ़ता है उसको कोई शर्म नहीं होती है। अभी आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, आपको शर्म सी आ जाएगी, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि इसी के लिए मैं पैसा कमाता हूं। अगर आप एक बात करें सब्जी वाले की कि वो आलू कहता है 12 रुपए किलो ले लो आलू, 12 रुपए किलो ले लो आलू, उसके ठेले के पास, रेडी के पास आपको खड़ा कर दिया जाए और सिर्फ एक बार ये कहने के लिए कहा जाए कि बोल दो 12 रुपए किलो आलू, आपको वही एक शब्द, एक सेंटेंस बोलने में शर्म सी आ जाएगी। Why? Because you make yourself uncomfortable. You take yourself to the uncomfort zone. No. Never allow this in your life, right? जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। तो आज का स्टेप, आज की पहला मोटिवेशन इज दैट प्लीज डोंट फील शाय। हाँ, डोंट बी दैट मच बेशरम एज वेल आल्सो, राइट? बेशरम रंग चढ़ा कहां देखा दुनिया वालों ने, तो ऐसा इतना ज्यादा बेशरम नहीं होना है। बट एनीवे, प्लीज रिमूव योर शाइनेस। हाँ, एक जगह शर्म आना बहुत जरूरी है,
जब आपके रिश्ते की बात की जाए और बोले कि आपका रिश्ता लग गया है, तो आप थोड़ा सा घूंघट अपने इधर लगाएं और बोले ना पापा। अंडरस्टैंड? ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से शाइनेस रखनी है, क्योंकि वो इज्जत है, वो सम्मान है। अगर पापा आके कहते हैं बेटी तुम्हारी मैंने शादी लगा दी, यस पापा, दैट्स ग्रेट न्यूज, फैंटास्टिक, इतना बेशर्म नहीं बनना है। उस वक्त आपको ये कहना है अच्छे पापा, थैंक यू सो मच, ओके। सो इन दिस वे, इस तरीके से आपको अपनी शर्म और बेशर्मी को बैलेंस करना है। यू नीड टू बैलेंस दैट। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के क्लास में मैं चाहता हूं कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज हमारे भारत देश की डेमोक्रेसी की बात चल रही है और अभी 5 बजे तक रिजल्ट आने वाला है। आपके फेवरेट जो भी हो सकते हैं, लेकिन भारत देश का इतिहास, समाचार, व्यापार सब कुछ बदलने वाला है। इस देश की वजह से या इस आज के दिन की वजह से सेंसेक्स में भारी गिरावट, भारी बढ़ोतरी आ रही है। बहुत सारे शेयर मार्केट के दाम घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों के दिल में हुचक सी हो रही है। बहुत से लोगों की उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है और बहुत सी लोगों की उम्मीदें आज पूरी तरीके से जो है कि चार चांद लगने वाला है। तो द पॉइंट इज दैट, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आज कुछ हम ऐसे टर्म्स देखेंगे, टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जो आज के दिन के लिए बहुत ही हमारे लिए सुटेबल बैठेगी। बिकॉज ओवरऑल हमें जो है सीखना है, तो क्यों ना आज के दिन से आज के दिन के बारे में सीखा जाए, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डियर स्टूडेंट्स, when you talk about today's day, so today's is the counting day of the Bharat and of the India, where one party is going to be elected as the governing and the exactly operating body, operating government. And when you just elect a government, it becomes your responsibility to elect a nice, good government which has a good governance. So आज हम बात यही करेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, देखिए, और हम कुछ वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, सारी चीजें देखेंगे और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा सा क्लास में एनर्जी भरने के लिए आप सब लोग साथ में मेरे कुछ बोलेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव अहेड, राइट एवरीबॉडी? सो यस डियर, हेलो हेलो एवरीबॉडी, दिस मोमेंट इज ग्रेट, दिस मोमेंट इज स्पेशल, amazing, superb, incredible. I'm so much fascinated. I'm so much interested. I'm so much excited because I believe I can change the scenario. I can change the mindset. I can change the mood. I can change my personality. I can speak English, I can do public speaking, I can crack interview. I can improve my communication skills, I can improve my public speaking skill, I can improve my personality. I can do this, I can do this. I can do this, I can do that. I can talk to myself and I can talk to you. I can say to my father, I love you so much, Father. I can say to my mother, hey mama, you are my world actually. Mama, I love you so much. Where are you? Come into my life. Look, I'm here. Your beta, your beti. Your beta and your beti loves you so much. And I want to say that I will never leave you. I will never keep you in the problems. I will never disturb you. I will never torture you, my mother. जिंदगी हंसाती है, जिंदगी नहीं, जिंदगी हंसाती है, रुलाती है। जो हर पल खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। So ladies and gentlemen, life is beautiful. Life is amazing. Life will bow down to you. And life will say, I love you so much. I love you infinite. I love you unlimited. I love you extremely hard. And I want to say that, hey, my life, you are my life. You are my life. You are so beautiful. You're amazing. I breathe you.
I respect you. I value you. I care you. I support you. I appreciate you. I encourage you. I motivate you. I inspire you. I moralize you. And I like you. Hey, my life. I like you so much. You are with me. You cooperate me, collaborate me, you help me. Let me ask you questions. You all answer me right, everybody. Hello, good morning, everybody. Are you excited? Yes. Everybody, good morning. Are you excited? Yes. Can you speak English? Yes. Speak complete sentence. Speak complete sentence. Do you try to speak English? Yes. Yes, I try to speak English. Do you practice English? Yes. Do you perform on the stage? Yes. Do you talk to your friends? Yes. Do you talk to yourself? Yes. Did you come last day? Did you come last day? Second form. Did you come last day? Yes, I came last day. Will you come next day? Yes, I come. Are you happy? Yes, are you Raj Lakshmi? Yes, sir. Where is Lakshmi? Lakshmi is around me. Around you? That's great. Do you respect Lakshmi? Yes, I lots of respect. Just Lakshmi Mata or the Lakshmi what you inherit? Lakshmi Mata also Lakshmi inherit. All right. The Lakshmi I inherit. Are you Khushi? Yes, sir. Okay. When do you feel very, very happy actually? When you go to traveling. Are you sanskar? Are you bekar? No. Are you a good, are you having a good samachar? Okay, what's that good samachar? Again, I will ask you a few more questions and then we will come to the session, right everybody? So, let me know, are you confident? Yes. Everybody, sab log boliye, are you confident? Yes. Do you respect your soul? Yes. Do you have a goal? Yes. Do you have a dream? Yes. Will you get your dream? Yes. Will you hunt your dream? Yes. Will you grab your dream? Yes. Will you hold your dream? Yes. Will you your dream? Yes, I will. No. I will hold my dream, right? Will you value your dream? Yes. Yes, I will value my dream. Okay, great everybody. Chali, moving ahead. Today's session, right? Okay, so first of all, सबसे पहले, when we talk about the India, so we have 4 pillars. अब यहाँ पे आपको एक word मिला pillar, but pillar आपके पास पहले से था. 4 pillars we have. We have the pillar number 1 is the legislature. आज का क्लास थोड़ा सा आज के दिन से रिलेटेड है, इसलिए हमें थोड़ा ज्ञान भी मिलेगा, साथ साथ में बहुत सारे ऐसे शब्द टर्मिनोलॉजी मिलेंगे जो हम इसमें यूज करते हैं. द सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, द थर्ड इज जुडिशरी एंड द फोर्थ इज मीडिया. सो वी हैव द 4 pillars. One is the legislature, one is the executive, one is the judiciary, one is the media. When you talk about the nation building or the nation foundation, तो हमारा जो भी कानून है असेंबली से पास होता है, हम सबको पता है. हमारे लेजिस्लेचर के अंदर जो है कि सारी चीजें आती है, where we have the constitution, where we have the parliament bodies, where we have the कानून passing bodies, and we have to actually just understand and respect it because it is very important and it is the one of the most important pillar of the nation, right? You all must remember it and must, connect to it. When you talk about executive, तो आज executive का ही दिन है. आज जो आप कह रहे हैं कि ये पार्टी वो पार्टी, मैं बिना किसी पार्टी का नाम लिए ये बताना चाहता हूं कि ये पार्टी और वो पार्टी. So this is all about party. और करेंगे आज सब लोग रात में पार्टी. So when you talk about this and when you talk about judiciary, so judiciary is all about the court, the adalat. And when you talk about the media, it is absolutely the news channels and the news panelists, right? So we all have 4 bodies, but 4 bodies के अंदर आज जो body काम करने जा रही है या elect होने जा रही है, this is this body. When we talk about, especially we have casted our vote and we are going to just appoint, according to us, one of the executive party, and it may be just whatever you like and just whatever you have casted your vote for.
but this will decide somewhere the legislature as well. The executive body will decide the legislature as well, and somewhere the executive body also decides media nowadays, right? So because media is also somewhere based on the executive body, but it should not be. It's a very bad thing for the nation, but somewhere it is there, so it should be under control. अब हम सबसे पहले इन सबको छोड़कर हम सबसे पहले एक पेज पे जाते हैं जहां पे दिया गया है बड़ा साफ साफ, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a republic, democratic, socialist, secular, and to secure its all citizens. Now when somebody asks to you, you are living in India, आप भारत देश में रह रहे हैं, what are your rights? आपकी जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, आपकी जो 12 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या है, एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड. आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप जीएस नहीं पढ़ते. इफ यू डोंट रीड द जनरल स्टडी, आप जाइए, एक पेज है भारत के संविधान में, द फर्स्ट पेज, यू रीड इट, आप इसे पढ़ लीजिए एंड यू विल बी गेटिंग द प्रॉपर वर्ड्स. आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है. तो अब जो भी पार्टी बनने जा रही है, जो भी पार्टी गवर्नमेंट पे आने जा रही है, तो उस पार्टी को ये वचन देना पड़ेगा कि आवर भारत इज एक्चुअली रिपब्लिक, गणराज्य है हमारा भारत, क्योंकि हमारे भारत देश के पास एक संविधान, तो संविधान से कानूनन तौर पे हमारा भारत देश रिपब्लिक बनता है. साथ साथ में यहां हम बोलते हैं बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल, राइट. भारत देश की जो सरकार है वो बाय द पीपल है, लोगों के द्वारा है, विद द पीपल है, लोगों के साथ है, लोगों से है, लोगों के लिए है, राइट. ये नॉर्थ कोरिया नहीं है कि किम जोंग उन की तरह कोई बाल कटवाए तो उसका सर जो है उसके धड़ से अलग हो जाए. ये नॉर्थ कोरिया नहीं कि वहां इंटरनेट चलाने पे जो है लोगों को सजाए मौत और सजाए जेल दी जाए. ये भारत देश है जहां भारत देश के अंदर यहां पे फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, विद द पीपल, इसीलिए इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी. अब इसमें से आपको एक बड़ा प्यारा सा वर्ड मिलता है, यू विल गेट अ वर्ड डेम. डेम का एक्चुअली मतलब होता है, डेम मतलब होता है लोग, पीपल. ये जहां भी आ जाए वहां लोग बना देगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला डेमोक्रेसी, आपने बोला डेमोग्राफी या डेमोग्राफ. अब ग्राफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लिखना, किसी के ग्राफ को समझना, और डेमो का मतलब हो गया लोग, लोगों के ग्राफ को समझने को बोलते हैं डेमोग्राफ. डेमोग्राफी उसी को बोलते हैं. आपने बोला डेमोलॉजी, लोगों के बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं, क्योंकि लॉजी मतलब हो गया स्टडी, राइट. लॉजी में स्टडी होगा. डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब हो गया शासन, किसी चीज को रूल करना, गवर्न करना, उसको क्रेसी बोलते हैं. तो डेमो का एग्जैक्ट मतलब हमें क्या निकल के आया, लोग, पीपल, अंडरस्टैंड, जनता. Okay, so now when you talk about the democratic, our India is actually democratic. Now we have the socialist, because somewhere I wrote and I also told you, मोहम्मद अब्दुल्ला मेरा नाम है, भारत मेरी आन बान शान है, इसके लिए कुर्बा मेरा दिल और मेरी जान है, तिरंगा मेरा सबसे महान है. So it means that when you talk about socialist, समाजवाद, so social is actually has been taken from the society. सोसाइटी मतलब समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कभी हमारी फिक्र नहीं करता उसकी हम दिन रात फिक्र करते हैं, वो होता है समाज. आज भी कितने लोग अपनी बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि बगल वाले चाचा कहेंगे अपनी बच्ची को बाहर भेज रहा है, वही होता है समाज. आज भी कितने लोग इसी पीड़ा में बैठे हुए हैं कि अरे यार वो तो घर छोड़ के चला गया दिल्ली, समाज क्या कहेगा. और जो हमें बहुत कुछ कहता है उसको हम कुछ नहीं कहते, वो समाज होता है. लेकिन भारत देश का समाज कुछ और है. भारत देश का समाज ये है कि यू लिव इन अ सोसाइटी ऑफ द हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में बहन बहन, भाई भाई, नॉट बहन बहन एग्जैक्टली, बहन बहन यस, एंड नॉट भाई बहन ओनली, बिकॉज शादी भी करनी है आपको. एनीवे, यू कैन नॉट कॉल एवरीबॉडी. जैसे बहुत से लोग, आपने लड़कियों को देखा होगा कि लोग, लड़कियां आती हैं बोलते हैं भाइयों, लेकिन लड़का कभी नहीं बोलता बहनों. लड़का बड़ा खराब होता है, राइट.
तो सोसाइटी समाज है। आपने बुलंदी मूवी देखी होगी, उसमें अनिल कपूर को बैनिश कर दिया जाता है। बैनिश वर्ड आता है, बैनिश का मतलब समाज से बेदखल करना। एक वर्ड होता है वैनिश, जो आपने देखा होगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी वैनिश कर देता है आपकी गंदगियों को, कपड़ों के दागों को, तो उसको बोलते हैं वैनिश। और बैनिश का मतलब होता है यहां गंदगी साफ हो रही है, यहां इंसान ही समाज से साफ हो जा रहा है, तो बैनिश हो गया, राइट। बट सोशलिस्ट हमारा देश है, समाजवादी है। उसके बाद हमारे पास है सेकुलर। सेकुलर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। When you talk about secular, तो सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्षता, जहां पे कोई भी किसी के फेवर में ना हो, राइट। Here you talk about कि यहां ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, यहां हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। दैट इज द भारत, यह है भारत। और भारत की इमारत को बुलंदियों तक पहुंचाइए और तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों में लहराइए और लोग कहे जय हिंद, भारत माता की जय। सो एनीवे, सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्षता, जहां पे हम सब लोग साथ में रहे। तो इट मींस दैट, ये कौन कहता है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये हमारा संविधान कह रहा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग, राइट। एंड टू सिक्योर, और सबके जो जितने भी सिटीजन्स इसमें हैं उनको सिक्योरिटी देना, ये भारत का कानून कह रहा है। तो आज की जो भी बॉडी बनने जा रही है, उन सब से आपका एक सवाल करने का हक बनता है। अगर आपकी राइट छीनी जाए तो, आपके ऊपर कोई आंच आए तो, जहां पे आपको न्याय का अधिकार है, किस न्याय का, जस्टिस ऑफ इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी का अधिकार है, आप पैसा कमा सकते हैं, उसको रख सकते हैं, आपका दैट इज योर राइट, वो आपका हक है। जस्टिस ऑफ इक्वालिटी, आप यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुम हो तो सनम जमीन पे बैठो, हम होए तो सनम हम कुर्सी पर बैठे। इट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज दिस इज द भारत। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, जब आप इसकी बात करेंगे तो इक्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हियर वी कैन नेवर सी द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्चुअली द अनटचेबिलिटी। छुआछूत और भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये छुआछूत और भेदभाव संविधान की तरफ से नहीं आता है, यह हमारे दिमाग की सोच की तरफ से आता है। इसलिए जब भी अपने बच्चों को आप लें, उनकी परवरिश करें, तो उनको गांव में रखें, उनको शहर में रखें, उनको दादा दादी के पास रखें, उनको लड़कों के साथ पढ़ाएं, उनको ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहां हर धर्म के लोग पढ़ें। इससे आपके बच्चे आगे आने वाले भविष्य में ब्रॉड माइंडेड होंगे, कट्टर नहीं होंगे, खराब सोच के नहीं होंगे और बेकार नहीं होंगे। इसलिए इस चीज को समझना, फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इकोनॉमी, इक्वालिटी। उसके बाद जो है कि देखिए, आप जस्टिस तो आपको मिल रहा है, साथ साथ में आपको एक्सप्रेशन का जो है कि इक्वालिटी मिल रही है, कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको जिस चीज पर यकीन है, आप उस चीज को मान सकते हैं। आपको जो भी फेथ है, उसकी आप पूजा पाठ, प्रार्थना, नमाज कर सकते हैं। और आप जो है कहीं पे भी, जहां भी पूजा करना चाहें, वहां आप पूजा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। It means we have the equality, we have the freedom, we have the liberty. हमारे पास इसकी क्या है, लिबर्टी है, आजादी है। लिबर्टी नाम का सिर्फ जूता और चप्पल नहीं आता, लिबर्टी संविधान के पहले पन्ने पे भी लिखी हुई है। तो लिबर्टी मतलब हो गया आजादी, फ्रीडम। तो यू हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट, सोच की आजादी है, सोच सकते हैं आप, यू कैन थिंक अबाउट समथिंग। यू हैव द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। यू हैव द लिबर्टी ऑफ फेथ, आपको वर्शिप, पूजा करने का, नमाज पढ़ने का अधिकार है। नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो ये सारी चीजें आपका संविधान देता है। इसलिए रेस्पेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आप सम्मान करें और उसका पालन करें, राइट। और यहां पे साथ में और कुछ वर्ड्स आते हैं। देखिए, मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं। एक्सप्रेशन, देखिए संविधान में एक्सप्रेशन नाम का वर्ड क्यों आया, क्योंकि आज अगर आप बात करेंगे 99% आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार उठा के देखिए, आपको मिलेगा 99% इज द रीजन ड्यू टू सेपरेशन। इंसान के दिलों की बात निकलती नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे घाव बन जाती है और वो डिप्रेशन का शिकार ले लेती है। इंसान यही होता है, और इसीलिए भारत का संविधान खुद कहता है अपने मन की बात को रखो ना, एक्सप्रेस इट। इसे आप एक्सप्रेस करो, टेल इट, आप इसे बताओ, स्पीक इट, इसे बोलो and tell to the people, लोगों को बताओ। So this is very very important. And now we have also the word unity, एकता, we have equality, बराबर सब लोग हैं, we have integrity, अखंडता,
एंड वी हैव फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में तो भाईचारा। अब देखिए, आप सपोज करिए कहीं भी स्पीच दे रहे हैं, आप कहीं किसी बातों को आप बता रहे हैं, अब ये सारे वर्ड्स अपनी स्पीच में आप यूज करते हैं, तो सोचिए कितना वजन बढ़ेगा आपका, आपकी बातों का वजन बढ़ेगा, आपको शिक्षित माना जाएगा। अब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, हाउ आर यू, गो देयर, कम हेयर, सिट डाउन। अब ये तो इंग्लिश हो गई, तो भाषा है, और भाषा आपको सीखने का है। जब आप अपनी बातों में, ladies and gentlemen, I just want to talk about the India, the country gives you the freedom of liberty of expression and belief and the faith and worship. The India says that we need to have and follow the unity, integrity, equality and the fraternity. आदमी कहेगा, क्या पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है यार, what an educated personality is. समझ नहीं मैम, रीता मैम, समझ नहीं मैम। तो ये एक एजुकेशन दिलाता है, इंसान की इंटेलेक्चुअलिटी दिखाता है, और नहीं तो फिर वही है कि सनम तुम अंग्रेजी बोलो, हम भी सुन के निकल लेंगे, राइट। तो सुन के निकले ना, इंसान निकल भी जाए तो रात दिन तकिया लेके, चादर लेके, बस आप ही के बारे में सोचता रहे, क्या बोला यार, क्या बोला, मां की कसम दिल में छेद कर दी। What an interesting point he spoke actually. तो इसलिए ये सारे वर्ड्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। तो हाउ मेनी पीपल मेंटेन दिस भाईचारा? वेरी गुड, भाईचारा शुड बी मेंटेन। सब लोग मेंटेन करते हैं, वेरी नाइस, क्या बात है, इट्स इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी पीपल बिलीव इन यूनिटी? हाउ मेनी पीपल बिलीव इन इंटीग्रिटी? हाउ मेनी पीपल बिलीव इन इक्वालिटी? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत प्यारी सी, पूरा समंदर लेना है अपने आप को। मतलब कुछ ऐसा डायलॉग था वहां पे कि मतलब पूरा महासागर, उसको पूरा मुंबई, अक्खा मुंबई चाहिए। अब अगर आपको अक्खी कोई चीज चाहिए, मुंबई की भाषा में बोल रहा हूं, अक्खी कोई चीज चाहिए, तो अक्खी में क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्खे में क्या है, ये अक्खा इंडिया है, 150 करोड़ लोग, 150 करोड़ में मान लीजिए लगभग 90-95 करोड़ मान लीजिए हिंदू हैं, 30-35 करोड़ मान लीजिए मुस्लिम हैं, उसमें से सिख ईसाई। अब अगर आपको अक्खा चाहिए, अक्खा हो ना, आपको ये नहीं कहना कि ये मेरी कम्युनिटी वाले इधर आओ, तुम्हारी वाले उधर जाओ, ये अक्खा हो यार, आपको अक्खा वेलकम करना है, यू नो, अंडरस्टैंड, वेलकम ऑल। अब इससे क्या होगा, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपके बिजनेस में डायरेक्ट 100% ग्रोथ। आपका कोई एक माइंडसेट है ही नहीं, आई बिलीव इन अक्खा। तो आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, सब अपने हैं। और देखा जाए तो बॉर्डर क्रॉस भी लोग इंसान हैं, वो भी अपने हैं, बस अगर वो गलती ना करें, राइट, गलती ना करें तो सब अपने। गलती करेंगे तो उसका जवाब भी हम देने को जानते हैं, लेकिन गलती ना करें तो सब अपने हैं। तो ये अक्खा ले लीजिए, और अक्खे के साथ साथ आप फिर उसके बाद 7.8 बिलियन ले लीजिए। आज भी कितने लोग भारत देश के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर सिर्फ ये कहने में फिर रहे हैं कि मैं तुम्हारा, तुम किसके, तुम मेरे, वो उसका, और इसी चक्कर में एक 5 रुपए की चाय लेके पीते हुए अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। वहीं बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट दे के पूरा पैसा अमेरिका मंगा लिया, जेफ बेजोस ने जो है अमेजॉन दिया, पैसा चला गया उधर, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक दिया, पैसा गया उधर। अब हम क्या करें, तो उसका, तो मेरा, तो किसका, राइट, और हम इसी में परेशान हैं। तो समझ रहे हैं ना, मतलब ये सारी चीजें। और देख लीजिए आप, सत्य नडेला फ्रॉम इंडिया, सुंदर पिचाई फ्रॉम इंडिया, राइट। सो यू कैन हैव द एग्जांपल्स एनीवे। So have you understood entirely and completely about the constitutional words actually? Have you understood it? Have you understood the meaning of the liberty? You have understood the meaning of the freedom and equality? Yes, sir. Fraternity? Yes, sir. What do you mean by secular? Dharmanirpesh. What do you mean by republic? Ganatantra. What do you mean by democratic? लोकतांत्रिक, राइट। एक तांत्रिक होते हैं, एक लोकतांत्रिक होते हैं, राइट। तो तांत्रिक के पास नहीं जाना है, लोकतांत्रिक के पास जाना है। ओहो, व्हाट अ ग्रेट थिंग, व्हाट अ ग्रेट थिंग। दोनों देखा जाए तो सेम है, synonyms, these are synonyms, but somewhere for the big things liberty is used, and somewhere for the normal and general terms we use freedom. Both are same, just it's used for some specific things, it's used for general things. Just we have the examples buy and purchase. Normally, कहाँ जा रहा हूँ, आलू खरीदने जा रहा हूँ, going to buy
पोटैटो, बाय पोटैटो। कहाँ खरीद, क्या करने जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू परचेज लैम्बोर्गिनी टुडे। परचेज करने जा रहा हूँ, थोड़ा स्पेशल चीज। सर संविधान क्या देता है? फ्रीडम देता है, लिबर्टी देता है। मेरे पापा फ्रीडम देते हैं, नॉर्मल है, पापा फ्रीडम देते हैं, राइट। इनकी मम्मी इनको फ्रीडम देती है, राइट। भारत का संविधान क्या देता है सबको? थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। अंडरस्टैंड? यू ऑल हैव द लिबर्टी एंड लिबर्टी शूज, नोबडी हैज एडिडास कैंपस। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 में ये एग्जीक्यूट किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। अब यहां पे एक वर्ड आया हमारा, इंप्लीमेंट। तो इंप्लीमेंट मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, या तो एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को लागू करना। तो कम ऑन, जो भी चीजें, व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, implement it, right? Execute it in your life. You will have a miraculous change. So Sanvidhan got implemented, right? Written by Dr. Bhimrao Ambedkar. Very good. अब यहां पे बहुत बड़ा इन्होंने पॉइंट उठाया, खैर वो डिटेल में काफी चली जाएगी। Designed by another person, written by another person, signatured by another person like Jawaharlal Nehru, and drafted by Dr. Bhimrao Ambedkar. बिकॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे, राइटिंग कमीशन नहीं था कोई, और उसमें 6 मेंबर और थे डॉक्टर भीमराव। तो ड्राफ्ट किया उन्होंने, यू अंडरस्टैंड? ही ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंड? तो ड्राफ्ट किया उन्होंने। यहां पे अब ड्राफ्ट वर्ड भी आ गया है हमारा, हाँ, अडॉप्ट भी हमारा वर्ड आ गया, राइट, यूके यूएसए। अब अडॉप्ट वर्ड है हमारे पास अडेप्ट वर्ड है हमारे पास, वी हैव अडेप्ट वर्ड, एंड देन वी हैव यस, वी हैव 3 वर्ड्स, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। अडॉप्ट द थिंग्स, पहले चीजों को अपनाइए, अडेप्ट उसमें घुल जाइए, अडेप्ट उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। यू अंडरस्टैंड? यू अडॉप्टेड हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, you are adapting yourself, and one day you will be adept means expert, master, right? If you want to master something, what you need to do? Adopt, then adapt, then, right? Are you adept of English language? Are you ready to become adept in English language? Yes, sir. Are you adept in cooking? Yes, sir. खाना बनाने में अडेप्ट हैं आप लोग, एक्सपर्ट हैं? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव बॉडी इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, वी हैव पार्लियामेंट्स, एंड द पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस। एंड हियर मैं आपको वर्ड बताने के लिए, जीएस बताने के लिए नहीं, पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस, वन इज द लोकसभा एंड अनदर इज द राज्यसभा, 545 245, राइट? एंड दीज आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। The bill is passed. अब यहां पे 2 वर्ड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। The bill is tabled. अब आपको लगेगा टेबल मतलब होता है सिर्फ मेज, और टेबल मतलब होता है पेश करना। जैसे जहां कोई मेहमान गया और उनसे बोला कि नोट्स फरमाइए, मैंने आपको बोला था शायद क्लास में, तो अपनी बार बार नोट्स चेक कर रहे हैं, कहे नोट्स फरमाइए, आप दस्तरख्वान पे बैठे हैं, बार बार फिर नोट्स चेक कर रहे हैं अपने, कह रहे यार नोट्स फरमाइए मतलब उर्दू में बोलते हैं खाइए, राइट? तो लेकिन वही होता है कि अगर आप शब्द आपको ना समझ में आए तो दिक्कत हो जाती है। अब मान लो बोला किसी ने कि पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट द बिल हैज बीन टेबल्ड, अब वो सोच रहा है कि लग रहा है पार्लियामेंट में टेबल पहुंचाना है, राइट? तो हम टेबल पहुंचा देंगे। इसका मतलब ये होता है किसी चीज को पेश करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्चुअली एलएस, द बिल इज टेबल इन एलएस लोकसभा, इट मूव्स टू राज्यसभा, इट गोज टू प्रेसिडेंट, एंड द प्रेसिडेंट पुट्स हिज सिग्नेचर, एंड देन इट बिकम्स एक्चुअली अ परमानेंट बिल. So it is the process of that, but there is one word which is very important, the table. And then another word is actually pass. Pass from Lok Sabha, moves to Rajya Sabha, pass from Rajya Sabha, moves to the president. Either president can keep it 14 days. Within 14 days, he puts his signature, or that becomes bill. That bill becomes a permanent bill. And that bill becomes a law. एक कानून बन जाता है, law बन जाता है. Right. अब law और rule, ये दोनों वर्ड में कभी कभी आपको छोटा सा कंफ्यूजन होता होगा, रूल और लॉ। रूल नॉर्मली होता है, हाँ ये रूल है, यहाँ का मत बोलो, यहाँ पे हिंदी मत बोलो, मान लो रूल है, इट्स डोंट स्पीक हिंदी। लॉ, हाँ, like rule is for like only specific place, and law is for like everybody
I have to follow it. Yes, it is from the government body, right? It is from the judicial body. It is from the executive body. You heard about the Saudi news? Saudi? झगड़ने में अचानक उससे एक लड़के की मौत हो जाती है, अपने कजन की. You know, he killed, unfortunately, unintentionally. After 1 year, he got hanged, capital punishment. यहां पे एक वर्ड आएगा, capital punishment. Capital punishment का मतलब होता है फांसी की सजा. Right? Okay, understood everybody. So here we have explained and talked about. Like I was giving you a few words. What is the meaning of table? पेश करना. What is the meaning of pass? Exactly. All right. What do you mean by execute? What do you mean by implement? What do you mean by amend? किसी चीज को सुधारना, संशोधन करना, बदलना. And what do you mean by mend? Mend means मिल भी जाना और mend means also सुधरना. इसीलिए बड़ी प्यारी सी कहावत है, never late to mend. जब जागो तब सवेरा. Never late to mend means जब जागो. Never late to mend means ऐसे ही नरसिंह बोलो जैसे बोल रही थी, शर्माना क्या है. Right? Never late to mend means. Now we have also discussed about the executive body as well. Few words like we have just discussed and analyzed. And I want that you all should adopt it. I'm not telling for the sake of just formality. I'm telling that you must know so that you can raise questions. आप सवाल उठा पाए, अपनी बातों में communication में रख पाए. Now we are coming to the judiciary. इसमें क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, क्योंकि हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और हमारी किस्मत है कि सबसे बड़ा अदालत यहीं पे है, और कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा जिस हिसाब से आप लोग का दिख रहा है एक्टिविटी, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं फंसोगे जरूर, और जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा. हमारे पास भारत देश में भी है 4 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स. 4 तरीके के कोर्ट होते हैं: सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट. टोटल 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. The biggest court of high court of India is Allahabad High Court. There are more than 65 judges, and we have the Supreme Court. Supreme Court we have 34 judges near about, and D.Y. Chandrachud ji is the CJI Chief Justice of India. But the most importantly, we need to understand that the words and the terminology we use in the court. Just for example, you all would have heard that a word is used max number of the times in the court, the adjourn, completely stopped, asthagit, बंद. We have the word postpone, किसी चीज को टाल देना. We have the word procrastinate. Procrastinate मतलब ये होता है किसी चीज को बार बार टालना. अब adjourn मतलब पूरी तरीके से स्थगित कर देना, ठीक है, बंद हो गया. Postpone मतलब नॉर्मली किसी चीज को टाल देना, और procrastinate मतलब थोड़ा लंबा ज्यादा टालना. Never procrastinate in your life. Never procrastinate in your life, right? And Kabir Das said that काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होई बहुरी करोगे कब. So it means that never procrastinate, right, Mr.? Never procrastinate in your life, never postpone, and the court is adjourned. Max number of the words are also used in the courts, as we know that there is a term lawyer, but sometimes we also are confused about lawyer. We are confused about advocate. We are confused about senior advocate. We are confused about advocate general, and we're confused about advocate on record. We are confused about public prosecutor, attorney general, एक और होता है स्टेट अटॉर्नी जनरल, स्टेट से रिलेटेड कुछ होता है. उसके बाद हम क्या बनते हैं? उसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो बड़े बड़े मुद्दों को, जैसे निर्भया कांड था, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकार की तरफ से उस केस को लड़ने जाए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है. इंडिया गवर्नमेंट के लिए लड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो अटॉर्नी जनरल होता है. और जो लंदन से अपनी डिग्री लेके आए वो बैरिस्टर होता है. एक टर्म मैं भूल रहा हूं, ये सारी चीजें होती है. एक टर्म जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए लड़ता है, आई मिस्ड इट. एनीवे, बताने का ये मतलब नहीं है, बताने का यहां पे ये मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर एडवोकेट की बात करें, एडवोकेट, तो वी हैव वन अनदर वर्ड इज एडवोकेसी. वी ऑल्सो हैव अनदर वर्ड इज लाइक एडवोकेटिंग. अब जैसे मान लो कोई किसी का पक्ष ले रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू एडवोकेटिंग दिस पर्सन? क्या बोलेंगे?
Why are you advocating this person? Why are you playing an advocate in favor of him when he is a criminal? तो यहां पे बहुत सारे वर्ड्स है कि आप इतना ज्यादा उसकी वकालत क्यों कर रहे हो. We have also the criminal, we have the convict, we have the victim, we have the accused, we have the, थोड़ा थेरी ज्यादा हो रही है, संभाल लो. We have also the, as I told you that, elephant crush, sorry. We have sawing. We have banishment. We have rehabilitation. We have capital punishment. We have lifetime imprisonment. We have stone pelting. We also have corporal punishment. We have the penalty punishment. ऐसे बहुत तरीके के पहले अगर when you talk about earlier, तो earlier आपने देखा होगा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को. लैला कहती है मजनू के लिए, उस वक्त मजनू को पत्थर मार के अभी स्टोन पेल्ट कर रहे थे. अर्लियर टाइम में क्या होता था, वी यूज टू पेल्ट द स्टोन्स. हम क्या करते थे, स्टोन पेल्ट. पेल्ट मतलब होता है मारना. तो हमारे पास एलिफेंट क्रश था, हाथी से कुचलवा देते थे. क्रश मतलब होता है कुचलवाना. और एक क्रश और होता है, राइट, जहां पे आप भी कुचले जाते हैं. अंडरस्टैंड. तो दो तरीके का क्रश होता है और उसके बाद आप हो जाते हैं क्रैश, प्लेन की तरह. अंडरस्टैंड. तो दोनों क्रश में आप क्रश होंगे, वेदर इट्स एलिफेंट क्रश और इट्स रियल क्रश. एनीवे, खुशी गॉट इट वेरी मच. सॉइंग मीन्स स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट सॉइंग, सो इट मीन्स एक आरी लेते थे, बॉडी को पूरा फाड़ देते थे, काट देते थे. पहले इस तरीके की सजा चलती थी, बाद में उसको खत्म कर दिया गया. बैनिशमेंट, समाज से बेदखल कर देते थे. रिहैबिलिटेशन, समाज सुधारक केंद्र में डाल देते थे. कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा जो आज भी चलती है बहुत रेयर केस में. लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद. कॉर्पोरल पनिशमेंट, 3rd डिग्री, राइट. अंडरस्टैंड. हाथ पैर मार के पीटना मारना, राइट. आपको बड़ा एक्सपीरियंस. आर यू सेफ? चलो, दैट्स ग्रेट. पेनाल्टी, फाइन लगा देना, और बाकी स्टोन पेल्टिंग, पत्थर से मारना. तो दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड एक्चुअली फॉर द सजाए और पनिशमेंट. लेट मी आस्क यू, राइट, इफ somebody has murdered and he comes under 307, what punishment he will get? Everybody? Capital punishment or lifetime? आप बोलो, आपको बोलना है. Everybody has to speak. Okay, lifetime imprisonment, right? If somebody just steals something or does some theft works, what type of punishment he will be getting? Rehabilitation center. If he is under 16, अंडर 16 होगा तो रिहेबिलिटेशन सेंटर जाएगा, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट जेल जाएगा, राइट. अंडर 18, अंडर 18, राइट. वाओ, व्हाट अ नॉलेज. यू आर द लॉयर, एडवोकेट. You are doing studies of LLB, right? No, I like studying about this. That's fantastic. But you are doing LLB, right? No. No, you're not doing. Okay, fine. If somebody has done the robbery, what kind of punishment he is going to get? Banishment, no? Now, what is the exact meaning of table? Sir, to present something. To present. How many courts in India? Sir, 4. 4 courts. Fantastic. 4 types of courts. Tell me the names. Supreme Court, High Court. Which is the largest and the biggest court of India? High Court of India. Allahabad. Allahabad High Court. That's fantastic. So, would you like to be the judge in Allahabad High Court? Okay, where are you from? I'm from Delhi. That's great, sir. Sir, I am from the executive body. Okay. So, are you happy if any party is elected as the Prime Minister and the Yes, ruling sir. party? Yes, sir. If they are doing
good work. I'll be. How are you? Are you an advocate? No, sir, I'm not. You're not an advocate. Okay. So are you criminal minded? No, sir, I'm not. You're not. Would you like to murder someone? No, sir, not. Are you veg or non-veg? I'm veg. Veg. So you will not murder anyone, right? But you will murder the aloo and the palak. Exactly, right? You believe that palak and aloo have life? Yes. Yes. So she will murder. And you also murder, right? I'm a non-vegetarian. You're non-vegetarian. That's fantastic. तो कभी आपने चलते हुए चिकन खाया है? आज ही और कल ही में कुछ कर जाना है, नहीं तो बाद में सिर्फ और सिर्फ पछताना है, पछताना है, पछताना है. So ladies and gentlemen, let's talk about it. Today we are going to have a very impactful and great conversation, and conversation will be on behalf of all these things. Executive, what do you think about this? What are the loopholes of India? हमें क्या क्या improve करने की जरूरत है? सब बात करेंगे